inspiring personality, Mr. Manish Kataria. He is a first-gen entrepreneur and the founder of Click, a pan-India branding and signage company driving creative impact across industries. He is also the national convener of TPF Futura and a certified international Preksha meditation trainer. In the past, he has also served on the working committee of the World Hindu Economic Forum. So, everyone, please join me in welcoming Manish ji. Welcome, sir. Yes, Vanshika, thank you very much. Sadar Jai Jinendra आप सभी को and thank you so much. As mentioned by Sanjay ji, thank you all for joining on a busy or a relaxed Sunday morning at 11 a.m. joining on time. Thank you so much. My name is Manish Kataria. I am the national convener of Futura. एंड फ्यूचरा एक ऐसा डिवीजन है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का जहाँ पे हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करते हैं. प्रोफेशनल स्टूडेंट्स लाइक सीए, सीएस, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, वी मेंटर देम इन वेरियस एस्पेक्ट्स. अ सेशन लाइक दिस, समथिंग लाइक इंडस्ट्रियल विजिट्स, personalized mentoring, lot of other aspects are being done in Futura, and I'm proud to be a Futurite. We have currently about 1,800 students across 65 cities uh, who have joined into Futura. And today's session would be an amazing one. Kindly take away a lot of things from Sanjay ji with a pinch of salt, and let's hope you take the maximum benefit of this session. Thank you very much. Now, I would like to also welcome Mohit Ji Baid, who's the National Joint Secretary of TPF. I would like him to say a few words before we begin our session today. Mohit Ji, are you around? Okay, I'll just unmute you here. ट्राई कीजिए एक बार मोहित जी. Yes. Bhante, actually I am in train, so हो सकती है आवाज थोड़ी ब्रेक हो. नेशनल टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटायर फ्यूचरा टीम को. Futura is doing amazingly well under the leadership of Manish Kataria, and we are fortunate to have Sanjay ji with us today. Sanjay ji's experience, उनका जो ऑरा है, we have all heard him in the past. So आज जैसा कि मनोज भैया ने स्टार्टिंग बोला, एक रिवीजन रहेगा हम सबके लिए to learn lot many things from him. So best wishes to everybody. That's it. Yeah. Thank you. Looking forward to hearing from you, Sanjay ji. Thank you, Mohit ji. Thank you. Yes, over to you, Vanshika. So next, we begin with the introduction of our today's speaker. Our today's speaker isn't just a business leader. He's a powerhouse of insight and impact. A double gold medalist from IIM Ahmedabad and a qualified CS and CMA, Mr. Sanjay Jain is the MD of TT Limited, a listed textile company driving change in the industry. He's the author of A Pinch of Salt in the Recipe Called Life, a bold and thought-provoking book that shares leadership and life lessons into 17 striking chapters. He has chaired key national bodies like the IISc National Textile Committee and CMAI, and has mentored students across India and the US. His leadership journey spans chairing national bodies like the IISc National Textile Committee and CMAI, and he has also been recognized with honors like the ET Business Leader and the Asia Pacific Entrepreneur Awards. His insights have been featured on platforms like India Today, CNBC, and many, many more. Please join me in welcoming the visionary Sanjay Jain. Welcome, Sanjay sir. Thank you for that generous introduction.
Thank you so much, Sanjay ji, for joining in. And before we begin the session, I would request if everybody can switch on their cameras. We can just have a quick pic of the of everyone present right now, and then we start the session. Yes, Nikita ji, if you are around, you could just take the picture. I would request everybody to switch on their camera if possible. I can see Dinesh ji Chopra joining in. I can see Rajesh ji. Thank you for joining in. I am a big fan of Sanjay ji, so definitely I was not supposed to miss this. Great. Same great. here. Okay. In I spite think of driving, I am hearing him. Thank you. Thank you. Honored. Yes. okay. Thank you very much. Thank you everyone very much. Yes, Sanjay ji. It's very exciting for me. साथ में थोड़े बहुत nervousness भी हो रही है because I've heard so much about you. But with some easy questions, let's begin today's session. So let's rewind the clock. What was Sanjay Jain like? A rebel, a thinker, a bookworm, or a mix of all? Never a bookworm for sure, because too lazy to really study so long. Okay. So what were you? But in your childhood, what were you like? Kind of a rebel, last minute Definitely thinker? not a rebel. We were always taught to follow the rule book, be a nice boy, अच्छा बच्चा बन के रहना है ताकि टीचर से डांट नहीं पड़े. But very interestingly, I changed my school in class 2 because I had not done my homework of the whole school. Oh. So मैं लंदन से वापस आया था when I was 6 years old, and बहुत मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन मिला, हिंदी नहीं आती थी. So, and in the first 2 terms I failed in all the subjects. बहुतों में तो खाता ही नहीं खुला, had a 0. तो जब दादू साहब पूछे बेटा क्या है तो बोला रसगुल्ला. तो इतना समझते नहीं थे. However, in the last 2 sessions, with hard work, और एक टीचर था जो मुझे मुर्गा बनाता था अगर मैं नहीं पढ़ता था, होमवर्क नहीं करता था. तो those typical हिंदी टीचर्स जो रहते थे. So somehow I still passed, though I was challenged कि ये बंदा को तो रिपीट करना पड़ेगा. I came 5th in class and passed with 80% in the last term. Somehow I managed to get out of the rut which had got into shifting from England to India. But फिर जब class 3 ज्वाइन किया तो वो रोज एक पेज हैंडराइटिंग करनी पड़ती थी. तो I had got admission in the best school of Calcutta, but same class 2 में ही मिला था because they didn't have option for class 3. So no, उस टाइम होता था भाई पीछे कौन डालेगा, अच्छा स्कूल है रहने दो. लेकिन 1 महीने बाद में फोन आया स्कूल के सेक्रेटरी से, सर आपका सीट और किसी को दे रहे हैं. तो मेरे पापा ने पूछा बेटा यू वांट टू गो टू द स्कूल, इट्स अ बिग स्कूल, इट्स स्टिल कॉल्ड ला मार्टिनिया फॉर बॉयज, कैलकाटा वाले जानेंगे. And उसके पहले I was in a school called MB Girls High School, which was predominantly a girls school. 3 तक हमको रखते थे. फिर हमको एक और स्कूल में भेज, नाम नहीं बोलूंगा because कोई पढ़ा हुआ होगा तो he'll feel insulted about it. But it wasn't. तो मैंने देखा यार ये 1 महीने का होमवर्क नहीं किया हुआ, फंस जाऊंगा. तो मैंने कहा पापा स्कूल चेंज कर देते. So these small things happen between the rule books. But I've always been a strategic learner, always believed smart work is very important. Just hard work takes you nowhere. And my best report card is that report card where I came last in class for 2 terms. And I ended up with 80%. मतलब 10% से 80% आना with all red marks. बहुतों में तो 0. तो समझ में नहीं आता था क्या लिखूं, मतलब इतना बुरा हालत था. So it's also a lesson in life कि कुछ भी हो सकता है. हम रोज कहानियां तो पढ़ते ही हैं कि कमाल हो रहे हैं, बट कुछ भी हो सकता है अगर आप कोशिश करते रहो.
और बाकी तो obviously destiny plays its role, circumstances play its role. So, but I became more a rebel, a more of outer box thinker when I moved out after my education. लोग सोचेंगे always top किया है, बड़े होशियार होंगे, कुछ अलग किया हो, but I was always following the rule book. After finishing and once I joined business, the real working life, एक क्लास 8 के लड़के ने मुझे बताया कि following the rule book takes you really nowhere, even if you're coming first. उसने बताया, उसने एक किताब लिखी थी, उसमें एक स्कूल प्रोजेक्ट था. हम सब स्कूल प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, और सब स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं. अच्छे कुछ फोटोग्राफ्स लगाएंगे, उस टाइम कैलिग्राफी यूज करते थे, आजकल तो कंप्यूटर का टाइम आ गया है. उसको अच्छे से पेपर से कवर ववर करके चमका के ले आते थे, क्योंकि पता था टीचर तो पढ़ेगी नहीं, बस सुंदर सांदर होगा तो नंबर आ जाएंगे. इस लड़के ने क्या किया, ही हैड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इजिप्ट इन क्लास. ही वाज अ क्लास 8 स्टूडेंट. ही रोट अ बुक कॉल्ड पोटैटो चिप्स, जो एक फ्रेंड के लड़के का था, सो आई रेड इट. तो मैंने देखा यार इसने प्रोजेक्ट अलग तरीके से किया, और मैंने जिंदगी भर कुछ ऐसा अलग करने का नहीं सोचा. उसने अपना प्रोजेक्ट इजिप्ट पर था. ही मेड इट इन अ पिरामिड स्टाइल, अ 3 डायमेंशनल थिंग. उसमें उसने एक ट्रे रखा, जैसे इजिप्ट के पिरामिड में मम्मीज, लेफ्ट ओवर्स, रेमिनेंट्स होते हैं, तो उसने बड़ा अलग तरीके से उसको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया. सो दिस स्ट्रक अ कॉर्ड इन मी कि व्हाई डोंट वी ट्राई टू थिंक डिफरेंट, व्हाई आर वी सो स्कैर्ड इन लाइफ कि जो हो रहा है उसको होने दो. एंड इनफैक्ट मेरे बुक्स के 2 चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड डिस्ट्रप्शन, are inspired by that thought. And from that day, I started thinking so differently. हर चीज में मैं अपने आप को एक सवाल पूछता हूँ, can I be different? Is there a different way of doing it? And there have been instances जहाँ एक, I was speaking in IIT Kharagpur, Calcutta में था, entrepreneurship session. Why I'm telling you this because आप लोग काफी लोग जॉब में हैं या अप्लाई करेंगे. तो एक लड़के ने मुझे 1 महीने बाद में फोन किया, बोला सर मैंने आपका नंबर बहुत मुश्किल से ढूंढा है, मैंने आपके सुनकर मैंने अपना सीवी अलग तरीके से बनाने का सोचा. मैंने एक बड़ी शू कम एमएनसी में अप्लाई किया, एंड आई मेड माय सीवी इन द शेप ऑफ अ शू सोल. एंड मैंने अपने 5 हेडिंग्स, जैसे जूते के अलग भाग होते हैं ना, जैसे उसके अंदर डाले कि शू का बेस होता है, लेसेस होते हैं. मैंने अपना सीवी बड़ा अलग तरीके से बनाया. तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना कॉलर ऊपर किया, देखो मेरे कान, बंदे को जॉब मिल गया. बोले सर जॉब नहीं मिला. तो मैंने कहा जॉब नहीं मिला तो फिर क्यों फोन किया. बोला सर मैं सीए हूँ, 3rd टाइम पास आउट हूँ, और सर वो बड़ी कंपनी में पॉलिसी है, ओनली फर्स्ट टाइम पास आउट्स को सीए में जॉब मिलता है. आप लोग को पता होगा, सब कंपनीज हैव दीज पॉलिसीज. तो मैंने बोला सर जो उसका एचआर थी, शी कॉल्ड मी, बोला मैं अपने 25 साल के करियर में ऐसा इनोवेटिव सीवी नहीं देखा. एंड दो आई कांट गिव यू अ जॉब बिकॉज ऑफ माय पॉलिसीज इन माय कंपनी, बट आई थॉट अगर मैंने आज आपको फोन नहीं किया, you will think you didn't get a job because of your, out of box CV, your creativeness. So I just want to say, keep it up, keep the fire going. You're destined for much better things. I never met him again. I never spoke. But what I mean to say is, we need to have a rebel inside us. And if we don't have that itch to do something, and it doesn't have to be for big things in life. आप एक सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बहुत सारे सोशल प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम्स, हर चीज करते रहते हैं. वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, अ नॉर्मल गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स. कैन वी जस्ट ओपन अप एंड से जो कल हुआ हमको आज नहीं करना है, मेरे को हटके करना है यार. और मैं बोलता हूँ आधी बार अच्छा नहीं लगेगा. मेरे बेटे ने भी कहा पापा आपने मेरा प्रोजेक्ट अलग तरीके से करा दिया, टीचर ने उस पर कुछ कमेंट ही नहीं किया. लेकिन दैट्स नॉट द आइडिया. यू मे गो अननोटिस्ड many times, but the day you get noticed, you'll create a big bang. So have a rebel, think out of the box. And I grew up with one thought: change is the only constant. Today I can say change is not the only constant, change is no option. If you need to lead, you have to disrupt. You have to be out of the box. आप 100% आउट ऑफ द बॉक्स होने वाले हैं. उसके सही साइड में होंगे या गलत साइड में होंगे वो आपका चॉइस है, क्योंकि बॉक्स तो निरंतर हर सेकंड चलता जा रहा है.
आजकल बहुत जल्दी चल रहा है, पहले धीरे धीरे चलता था। पहले हम देखते थे एक दुकान से एक पीढ़ी या दो पीढ़ी एक कंपनी की एजेंसी से पूरे परिवार को चला देती थी। आजकल एक एजेंसी एक कंपनी से जुड़ने से आप में भी 7 8 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकते हो, तो द कंपनी गेट्स इररिलेवेंट, कंपनी के कस्टमर चले जाते हैं। सो वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, वी आर ऑन अ ट्रेडमिल, you can Absolutely. go slow, but if you stop, you're bound to fall, friends. ग्रेट ग्रेट। आपने दो चीजें बोली थी, एक तो डिसिप्लिन के बारे में एंड सेकेंडली अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सो एक तो मुझे जानना था आपके फैमिली वैल्यूज के बारे में व्हेन यू ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, और दूसरा मुझे जानना था, मैंने कहीं आपकी बुक में पढ़ा था कि आपने 8वीं कक्षा में सपना देखा था कि मुझे आईआईएम ए में कैट देना है और आईआईएम ए में दाखिला लेना है। सो कैन यू टेल, जस्ट टच अपॉन बोथ दीज एस्पेक्ट्स। मैं मेरा एक ही वैल्यू है, कुछ भी करो, जो आपको इच्छा है करो, और किसी को आपके कुछ करने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी जब मैं धर्म संघ से जुड़ा, एंड वो थैंक्स टू टेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जुड़ा। उसके पहले मैं धर्म संघ से जुड़ा हुआ नहीं था, ये नया संगठन बना। और मेरी एक आदत है, जो चीज मुझे करनी होती है मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूँ। टीपीएफ के बारे में सुना, मुझे लगा दिस इज वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, तो मैं गाड़ी लेके दिल्ली से लाडनू आया, 10 घंटा 12 घंटा ट्रैवल करके। एक भी आदमी को नहीं जानता था, एक भी आदमी को। वहां नरेंद्र जी शामशुका रात को खड़े थे, वो प्रेसिडेंट थे, पर मैं उनका कोई परिचय नहीं था। मैं फिर भी वहां गया, लोगों से जुड़ा, खुद अपनी जगह बनाई, एंड 1 2 साल में आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन टीपीएफ, आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज। Unfortunately, due to time commitments, I could not lead it the way some of our seniors wanted it to lead it. But जो करना है वो आदमी को करना है। लाइफ इज अ रेनबो, सबको अलग अलग रंग जीना है। हम अनेकांतवादी हैं, और सबसे दुख की बात है जैन में भी 80 90% अनेकांतवाद से वाकिफ नहीं है। बड़ी दुख की बात है। Whenever I speak on my book and in जैन का, ऐसी हाथ उठाने को तो 10% लोग हटाते हैं, उसमें भी कुछ हाथ आधे उठते हैं। मे बी वर्ड सुना हुआ, मतलब नहीं पता है। मुझे नहीं पता यहाँ जो लोग हैं उनमें से कितनों ने सुना है, बट दिस इज अ लाइफ चेंजर। इसका मतलब है जस्ट बिकॉज यूर राइट डजंट मीन द अदर पर्सन हैज टू बी रॉन्ग। आज मैं जो भी आपको बोल रहा हूं वो सही है भी और नहीं भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सुनो और समझो सबकी, बट करो अपनी। I believe do what you believe, that's your real value system, पर आपके करने से और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बचपन में आज भी है, और मुझे लगता है मरने के आखिरी सांस तक मैं इसको करूंगा। मेरे बच्चों को भी यही कहता हूँ। I may not agree with them, but they have to ask themselves कि मैं और किसी का गलत तो नहीं कर रहा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं जिंदगी में कहीं भी पहुंचा हूं, मुझे कोई मन में अफसोस नहीं मैंने किसी के साथ गलत किया। एक आदमी के साथ भी ना मेरा मन में उसके अगेंस्ट कुछ है, चाहे वो मेरे को कुछ भी समझे, और ना मेरे मन में कोई गिल्ट है। कमिंग टू योर सेकेंड थिंग, ड्रीम्स आर बिल्ड आउट ऑफ नथिंग। इन क्लास 8 आई मेट IIM अहमदाबाद पास आउट। उसने कहा मुझे, संजय बेस्ट MBA मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद है। मेरे फादर डॉक्टर थे। आई एम बॉर्न इन लंडन, एज आई सेड अर्लियर। He was a brilliant doctor, double FRCS उस टाइम में, लेकिन the grass is greener on the other side। मैंने कहा यार डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, पैसा बिजनेस में है, तो मुझे तो बिजनेस करना है। बिजनेस क्या होगा? मैनेजमेंट करना है। तो भाई ठीक है, मुझे MBA करना है। MBA का होगा बेस्ट IIM अहमदाबाद होगा, तो चलो IIM अहमदाबाद करना है। जीरो आइडिया था IIM अहमदाबाद में क्या पढ़ता थे। यहाँ तक क्लास 10 में जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे स्कूल वालों ने साइंस में डाल दिया। अब मुझे समझ में आ रहा था मैनेजमेंट मींस कॉमर्स, तो मैंने कहा मैं तो कॉमर्स ही पढ़ूंगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने फादर को बुलाया, बोला कॉमर्स तो फालतू बच्चों के लिए है, योर बॉय इज ब्रिलियंट, ही इज गॉट बेस्ट मार्क्स इन साइंस, बेस्ट इन मैथ्स, इसको आप क्यों घसेड़ना चाहते हो, इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। और आपको पता है स्कूल प्रिंसिपल्स में है ना, इंजीनियर हो डॉक्टर हो तो लाइफ बन गया। वो अपने मारवाड़ियों में है CA, और मुझे तो CA भी नहीं करना था।
तो पापा बोले भाई, और मुझे उस टाइम से माय पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड, बोले इसको जो करना है करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं Okay. इसकी, मेरे पेरेंट्स डे वन से ऑलवेज ट्रस्टेड मी इन एवरीथिंग। आज तक एक भी इंस्टेंस नहीं है जब उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए कहा। दे Absolutely. ऑलवेज सपोर्टेड मी ब्लाइंडली, और इसलिए Great. मेरी आदत भी खराब हो गई, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है। So, Amazing, amazing. अब गलत है ऐसा ही जो भी है, बट हूं ऐसा। सो थोड़ी वाइफ को भी प्रॉब्लम होती है, बट आई, in science class 2 months I did not attend, I did not open the book in physics and chemistry. Finally the school gave me commerce. I was ready to leave a school like La Martiniere, They and gave up. then they gave up obviously. After that everything was go, मुझे कैट में जाना था। मैंने बीकॉम के सेकेंड ईयर में कैट दे दिया। आई वॉज ऑलवेज अ स्ट्रैटेजिक लर्नर एंड अ स्ट्रैटेजिक पर्सन। सिर्फ हार्ड वर्क करना, 12 14 16 घंटा पढ़ता था मैं भी बहुत, लेकिन मैं हमेशा हर चीज में लॉजिक होता था मेरे। मैं जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, जो मैं सोचता 2 बजे उठ के पढ़ूंगा, सो जाऊंगा तो एग्जाम में भूल जाऊंगा, नींद बीच में आ जाएगी। मैं हमेशा प्रॉब्लम का, मैं कभी भी मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया आज तक अपने लाइफ में, एक भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करता था। जो लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन, मैं बोलता मैं आधे घंटे 1 घंटे में जितना सम प्रैक्टिस करूंगा, उससे 10 गुना सम सॉल्व करने का सीख जाऊंगा। सॉल्यूशन एंड आंसर का बुक आता था, उसको खोल लेता था, बोला समझ लो बस, ये नहीं रट, आई वुड नॉट मेमोराइज इट, मैं समझता था। सो आप जितनी देर में 50 सम याद करके जाएंगे, मैं इतने समय में 500 सम आंसर करने की क्षमता रखता था। My God. So, and my ways were always my ways. I never learned it from anyone. It all came on my own logic. I am a very logical person, and everything has to have some logic. चाहे वो कर्मा हो, मेरा बुक अगर आपने पढ़ा हो, कर्मा हो, डेस्टिनी हो, आई हैव अ लॉजिक फॉर एवरीथिंग। मतलब Absolutely. राइट और रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अनेकांतवादी है, आपका सोच अलग हो सकता है। सो मुझे जाना था। मैं सेकेंड ईयर में IIM अहमदाबाद में इंटरव्यू के लिए पहुंच गया, IIM कलकत्ता पहुंच गया, उन्होंने भगा दिया, बोला अभी आप बीकॉम हुआ नहीं, आप ये आए कैसे। तो कलकत्ता में क्या 2 साल में भी ग्रेजुएशन हो जाता था, एक यूनिक चीज थी, Okay. modern थी। तो उनको भी नहीं पता था, बट मैं थर्ड ईयर में फिर गया, एंड आई बाय गॉड्स ग्रेस आई पास। मैं सीए भी कर रहा था, और क्योंकि मैं ऑलवेज बिलीव करता था इन प्लान बी। अब IIM Right. अहमदाबाद में नहीं हुआ तब क्या करोगे, लोग बोलते तुम्हारा तो हो ही जाएगा, बट आई नेवर बिलीव इन दिस हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी में। द बेस्ट ऑफ पर्संस डोंट गो वेयर दे आर मेंट टू, दे गो समवेयर एल्स। सो आई हैड प्लान बी। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट दिया। कॉस्टिंग मैंने पूरे इंडिया में सबसे पहले कंप्लीट किया। Oh, मैंने great. बिना एडमिट कार्ड, मैंने बिना ग्रेजुएशन के फॉर्म भर दिया, और एडमिशन के एक दिन पहले, एंट्रेंस एग्जाम के पहले, मेरा मार्कशीट आया 12th का, उसको लेके भागा, और 4 बजे ऑफिस बंद होता था, 3:30 बजे पहुंच के सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड लिया। सो आई ऑलवेज बिलीव, करते रहो यार, हारोगे जीतोगे, जो होगा होगा। पूरे कॉलेज में आई वॉज द ओनली गाय टू फिनिश कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब मैं IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में गया, आई वॉज द ओनली कॉस्ट अकाउंट, मेरे बराबर वाले सब इंटर पास थे। Oh, सो बहुत हर चीज का लॉजिक जोड़ता था। मुझे कॉस्ट अकाउंटेंसी से कोई प्यार नहीं था, मुझे कुछ मतलब नहीं था उससे, बट मुझे उसका डिग्री चाहिए था। बाय गॉड्स ग्रेस आई आल्सो टॉप्ड इट ऑल इंडिया। मुझे खुद को नहीं विश्वास हुआ कि आई हैव कम फर्स्ट ऑल इंडिया, यू नो। oh, great. मैं तो मेरे Amazing. बाजू वाला बोल दिया ये आ ही नहीं सकता, पास हुआ यही बहुत है, जो मेरे बगल में बैठती थी। बट आई थिंक सो लाइफ मीन्स यू नीड टू कीप ट्राइंग, keep having the conviction. I've been lucky in life in many things, but in many things I have not been lucky also. But आप करते रहोगे तभी कुछ पाओगे। Absolutely, absolutely. And also following up, मुझे ये समझना था कि I've heard so much CA, you've done your IIM, but was there any period or any time in your life during your education जब आपने self doubt किया हो या struggle किया हो कि मतलब am I really worth, मतलब मैं definitely कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, were there any moments of self doubt which you had? क्योंकि Oh, आपका no. कॉन्फिडेंस इतना लगता है, तो मुझे ये नहीं समझना है नहीं, कि आपने मुझे सेल्फ डाउट हमेशा था। दैट्स व्हाई आई हैड प्लान बी।
despite passing CAT and going to all the interviews, all the IIMs, all XLRI, without preparation, मैंने उसको क्या ट्रायल के लिए दिया था पहली बार कैट, क्योंकि एक माहौल का भी एक फीलिंग होता है ना, हाउ यू हैंडल प्रेशर. इट्स नॉट ओनली इंटेलिजेंस which get, there were people much more intelligent than me, 100%. Even I topped IIM Ahmedabad, there were IIT रैंक होल्डर्स भरे हुए थे आईएम्स में, और मैंने तो सोचा मैं आईएम में लास्ट 30 में आने वाला हूँ. Okay. मेरे को किसी ने आईएम में पहले दिन में अपने ग्रुप में नहीं लिया, तो कॉमर्स लोगों की कोई इज्जत ही नहीं थी. यू नो, आईआईटी कोई ऑल इंडिया 20th रैंक होल्डर, कोई 70th. मतलब हम जो 5 लोग बच गए ना, हमने ग्रुप बनाया एक अच्छा. दूसरे को, क्योंकि सब ने अपने अपने होशियार लोग को ग्रुप में ले लिया. और 9 महीने तक किसी ने मुझे नहीं देखा. मैं भी सोचा, मैं 180 बच्चे थे, तो मैं घर में बोला देखिए पास हो जाऊंगा बहुत है. मतलब ऐसा नहीं, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, आई हैड फुल ऑफ सेल्फ डाउट्स, बट आई हैड अ क्लियर गोल, आई हैड अ पैशन एंड अ ड्राइव इनसाइड मी. And I think so somewhere in life that helped. Even cost accountancy was just a stepping stone for me. It never meant anything per se. It was Okay. just a stepping stone to my real vision. But I wanted to build myself in such a way, 360. Social work किया, NGOs join किया. मतलब you need to be a 360-degree personality always. Just education, just किताब रटने से कुछ नहीं होता है. वो एक सीमा तक ठीक है, उसके अलावा काम नहीं करती है. डाउट बहुत था, हर कदम पर डाउट था, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. पर हाँ, कोशिश और मेहनत और स्ट्रैटेजी हमेशा मेरे साथ थी. आपने मतलब जैसे आईआईएम की पढ़ाई की तो यू वर आउट ऑफ योर हाउस, आपने हॉस्टल में पढ़ाई की. तो आज हमारे साथ काफी सारे बच्चे होंगे जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे फ्यूचराइट्स हैं. तो उस अनुभव में मतलब सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? मतलब आज घर से बाहर रहना, घर का खाना, घर का माहौल, परिवार, इन सब से दूर रह के किस तरह की आपको मतलब. बिलीव नहीं होगा, मैंने लाइफ में पहली बार ट्रेन कलकत्ता टू अहमदाबाद पकड़ा. 44 घंटा का ट्रेन जर्नी था. आई वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड. माई मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. पहली बार लाइफ में निकला, वहां पर अपना सेट किया. बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग. हर एक आदमी को अपने बच्चों को अगर उसने अकेला नहीं भेजा, वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिससर्विस कर रहा है. ट्रस्ट मी, everyone should spend 1 or 2 years alone, and you should never take your parents with you. मैं आईएम अहमदाबाद में सेट हुआ, फिर जॉब के लिए बॉम्बे गया. अपने आप मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं कहा कि हम चल रहे सेट करेंगे. बहुत से आईएम अहमदाबाद के, खासकर विद ड्यू रेस्पेक्ट, गर्ल्स के पेरेंट्स आते थे, पर्दा तक लेके आते थे कि पर्दा लगाएंगे, धूप नहीं आए. वी हैड सिंगल रूम्स. मेरे बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया, लंदन गए, कहीं भी गए, आई हैव ऑलवेज अलाउड देम टू गो अलोन. आई नेवर सेड हम जाएंगे आएंगे, कुछ नहीं. सो आई थिंक सो यू नीड टू गिव दैट लीवे. जब तक आप किसी बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंकोगे नहीं, दैट पर्सन विल नेवर लर्न टू स्विम. एंड आई करेक्ट. थिंक सो आई मैन दैट टॉट मी. एक तो कोई भी मारवाड़ी नहीं था, कोई भी जैन नहीं था. दुनिया भर के, हमारे लिए साउथ इंडियन इडली डोसा होता था, वहाँ कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, केरलाइट, एवरीवन वाज देयर. एंड आई थिंक सो दैट लर्निंग, दिवाली कोई सुबह मना रहा है ऑयल बात करके, कोई कुछ कर रहा है. महाराष्ट्र, वी हैड आर्मी का नंबर 2 पर्सन डॉटर स्टडिंग देयर. सबकी एक अलग अलग सोच, अलग अलग प्रवृत्ति. मतलब दैट वाज अ मेल्टिंग पॉट. और मैं 2 साल में जो सीखा, मतलब उसके बाद में तो मैं हो गया कि हमेशा डाइवर्सिटी इज दी थिंग. मैं कोई भी संस्था में, मतलब अगर आप देखोगे, आई हैव बीन इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, but I never spent more than 2 years to 4 years there. I think so. Okay. We are losing our marginal value addition. आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम. यू नीड टू गिव द बेस्ट. मैं कभी भी अपने बिल्डिंग का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो सेम समय में द लर्निंग एंड द वैल्यू एडिशन मस्ट लेस. मैं ऑल इंडिया का टेक्सटाइल का चेयरपर्सन रहा हूँ. आई वर्क विद स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, 1-to-1 आर्ग्यूमेंट. किसी भी मिनिस्टर से मुझे डर नहीं लगता है. आप मेरे बात करते सुनोगे, एकदम बिंदास बात कर सकता हूं. लेकिन
मैं कभी अपना स्टेट का नहीं बना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हूँ 15 साल से। मैंने कहा वाई स्पेंड एंड वेस्ट टाइम ऑन अ स्टेट व्हेन यू कैन लीड द कंट्री। सो यू शुड ऑलवेज हैव डाइवर्सिटी एंड डू सो मच मोर। मतलब दो, अपने आप को सीमित मत करो। वर्ष से वर्ष क्या हो गया, आप फेल होंगे, लोग बोलेंगे अच्छा नहीं किया। वो तो आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। बहुत लोग जलने के लिए बोलेंगे, अरे ये मेरे बिल्कुल से जूनियर है यार, ये कहाँ आगे बढ़ गया है। तो यार बिंदास नई चीज करो, बी आउट ऑफ द बॉक्स, बी डिस्ट्रप्टिव। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको बताना चाहूंगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं संजय जी आप तो ब्रिलियंट हो, आपके क्या जाता है बोलने में कि आउट ऑफ द बॉक्स, डिस्ट्रप्शन, नई चीज करो। इसमें लगता है क्या आपके, अब हम आम आदमी है, हम बिल्कुल से पास हुए, हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो खैर 90-100 लोग हैं, दुनिया का हर आदमी अलग काम कर सकता है, इंक्लूडिंग अ होम मेकर एंड हाउस वाइफ। अगर आप मेरा किताब पढ़ोगे, आई हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ अ होम मेकर, हाउस वाइफ आल्सो। हाउ कैन यू बी डिफरेंट? You don't need to invent the wheel. राइट Need to know how to use that wheel. एब्सोल्युटली इन्वेंटर से ज्यादा उसको अप्लाई करने वाला ज्यादा फेमस और ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर हम बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर हम छोटे छोटे परिवर्तन रोज करते रहे और चेंज इनटू चेंज इनटू चेंज इनटू चेंज ओवर 360 days, the impact is much more than one big change. और आपको राइट एक दिवाली का एग्जांपल बताता हूं। आप, एक चॉकलेट बम होता था, आजकल तो पटाखे ही बैन हो गए, और अपनी एक लड़ी होती थी जो 10,000 की लड़ी होती थी, जिनको पता है। तो एक लड़ी अगर आप छोड़ो तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि कोई आवाज हो रही है। बट जब राइट आप 10,000 की लड़ी जोड़ते थे, उसका इम्पैक्ट वॉज मोर देन ए चॉकलेट बम। राइट यू विथ स्मॉल चेंजेस कैन बी मच बिगर देन अ बिग चेंज। The turtle and the hare की story, slow and steady defeated a hare because the turtle kept walking at his speed while a hare ran and then बोला आ रहा है पीछे से, क्या आराम करते। एंड मेरा एक एग्जांपल है किताब में, यू मे नॉट बी, यू डोंट नीड टू इन्वेंट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी एन इनोवेटर। यू हैव, सपोज आपको एक फूल बनाना है, गुलदस्ता, अ बुके। एक आदमी एक गार्डन बनाएगा, बेस्ट फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसका एक बुके बनाएगा। मैं वैसा कभी नहीं करता। मैं हर गार्डन का बेस्ट फूल उठाऊंगा, मतलब बेस्ट आइडिया उठाऊंगा, और 20 गार्डन के बेस्ट फ्लावर्स को लेकर एक साथ कर कर, सिर्फ मेरा आर्ट ये होना चाहिए, वो 20 बेस्ट फ्लावर्स को अरेंज कैसे करूं, वो मुझे आना चाहिए। आई विल बी मच बेटर देन दैट गार्डनर हु मेड द मोस्ट एक्सोटिक फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। So forget those who are doing the big things. You don't have to be a Newton. You don't have to be an Einstein. You just need to how to use it. उस पर दिमाग लगाइए. All of us can create big wonders in life. Definitely. And I'm 100% sure. अगर कोई बोलता नहीं है मेरे से मिल लो, आप बता दो सिचुएशन है, मैं आप ही के मुंह से निकलवा दूंगा। बट आपने तो मतलब सारी परिभाषाएं दूर कर दी हैं सर। जैसे कि आपने बताया कि पुराने कुछ चीजें, टर्टल और रैबिट की कहानी है, आपने तो सब कुछ फास्ट कर लिया। जब आपको सीए कंप्लीट नहीं करना चाहिए आपने पहले ही कर लिया, आईआईएम का एग्जाम आपने पहले दे दिया, सब कुछ फास्ट 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 किया है। सेकेंडली, बहुत एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आपने तो उसको भी परिभाषा को उल्टा कर दिया है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड एंड जैक ऑफ नन। तो नहीं नहीं, मैं मास्टर नहीं हर हूँ। मैं गाना नहीं गा सकता हूँ अच्छा। जब कोई शाम होती है और लोग गाने वाले की वाह वाह करते हैं, तो हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं। हम तो अंताक्षरी भी खेलते थे, तो 20-25 गाने याद करके रखते थे, 4 न से, 4 स से, 4 र से, ताकि 15-20 मिनट अपने हारे नहीं। तो हम, तो यू कैन नेवर बी अ मास्टर ऑफ ऑल, बट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट योर ओन रेनबो। एब्सोल्युटली रेनबो एब्सोल्युटली हैज 7 कलर्स। एक चीज में अच्छा होने से कोई मजा नहीं है। सातों रंग जिंदगी के जियो, कुछ रंग गहरे जियोगे, कुछ हल्के जियोगे। लेकिन जब जाने का टाइम आए तो ऐसा नहीं हो कि पता ही नहीं हो कि बाकी 5 रंग क्या थे। आपको अच्छा ना लगे, सूट ना करे, ठीक है, लेकिन सब रंग जियो।
कुछ रंग ज्यादा जियो. यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर टू एंजॉय एन एक्सपेरिमेंट. अगर आप Right. गाना नहीं गा सकते हो यार, आप गाना को एंजॉय तो कर सकते हो, डांस तो कर सकते हो. बिल्कुल सही बिल्कुल. जगह पर सही काम करना पड़ता है. इतनी सी बात है. दैट्स द मोस्ट Amazing. इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ. Amazing. Rainbow is the amazing thought. uh, लेकिन अभी जैसे हम सब के पास 24 घंटे हैं दिन में. Everybody has those 24 hours in a day. Some utilize it, some think that we are short of time. So what does a typical 24 hours a day look in Sanjay's life? मतलब एक 24 hours a day में आप क्या करते हैं? What is your typical daily routine? What do you do? खैर, मैं रूटीन वाला तो आदमी नहीं हूँ. जो मिलता है सुबह वॉक पर जाता हूँ. कोई मिल जाता है तो चाय पीने चला जाता हूँ, नहीं मिलता तो वॉक करके प्रणाम करके आ जाता हूँ. सो वाई टू बी टाइड आवरसेल्फ इन नॉट्स यार. एक ही तो जिंदगी है. बस इतना पता होना चाहिए कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स. बिंदास जिंदगी जियो. बट आई बिलीव मेनी पीपल आस्क मी, संजय जी आप इतना करते रहते हैं, आप करते Absolutely. कैसे हैं? तो मैंने कहा दिन को घंटे से मत जोड़ मेजर करो. अ डे इज हाउ मच आउटपुट यू गेट आउट ऑफ इट. किसी के Absolutely. लिए 12 घंटे का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है. मेरा दिन डेफिनेटली 36 घंटे का तो होता ही है, 48 घंटे का भी हो सकता है. द Right. अमाउंट ऑफ आउटपुट यू गेट फ्रॉम अ डे measures the day, not the number of minutes and seconds. That's my opinion. And how can you do that? You need to do multitasking. आप एक Multitasking. समय में, और फिर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है. कोई बोलता है संजय जी आप तो कह रहे हम फोकस ही नहीं करें. मैंने कहा आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस करना पड़ेगा. बट कई बिल्कुल. चीजें डजंट नीड सो मच फोकस. सो एट दैट टाइम कैन वी डू 2 थिंग्स और 3 थिंग्स. मैं, अगर जो मुझे जानते हैं, आई रिप्लाई वेरी फास्ट ऑन व्हाट्सएप और ईमेल. और मैं कभी भी रात को अनआंसर्ड व्हाट्सएप या ईमेल नहीं छोड़ता. अगर अनलेस आई मिस इट जेन्युइनली. और मेरा स्टाफ सबको बोला हुआ है, अगर 24 घंटे में इफ आई डोंट रिप्लाई, आप मुझे कितनी बार भी रिमाइंड कर सकते हो. Right. Everyone has the right to remind me, because if I have them on my friend list, I have to answer to them. Absolutely. And I think so it's fair enough. आप कुछ नहीं तो ये लिख दो, ओके आई विल रिवर्ट बैक. मेरी याददाश्त थोड़ी खराब है, तो दैट इज माई स्ट्रेंथ. बिकॉज मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा, तो बेस्ट है अभी बोल दो. नहीं तो Definitely. घंटे को Definitely. मैं भूल जाऊंगा. सामने वाला मनीष जी बोलेंगे संजय जी यार बड़े आदमी है, जवाब नहीं दिया. बड़ा आदमी तो खैर मैं हूं भी नहीं. एंड ऐसा कुछ भाव रखना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हमेशा आपसे भी ऊपर कोई है. बिल्कुल और, बिल्कुल. और बड़ा किस में है? आप एक चीज में बड़ा है. आप पैसे में बड़ा है तो कोई स्पिरिचुअलिटी में बड़ा है. कोई किसी के पास पॉलिटिकल पावर में बड़ा है. कोई उसमें कला में बड़ा है. तो बड़ा भी तो कोई अलग अलग चीज में होता है. सो Absolutely. you need to do multitasking. Some things need 100% attention, some 75, some 50, some need 25%. जैसे आप घूम रहे हैं, आप कान में ईयरफोन लगा के भक्तांबर सुन सकते हैं, किसी का मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं, नवकान मंत्र का पाठ सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो आपने 2 काम कर लिया. अगर आप जिम की जगह धूप में घूम रहे हैं, तो आपका सन बाथिंग भी हो रहा है, तो आपने 3 काम कर लिया एक साथ में. अगर आप ग्रीनरी में घूम रहे हैं और लंबी सांस ले रहे घूमते घूमते, आपने प्राणायाम भी कर लिया. तो यू कैन डू Absolutely. 4 थिंग्स. आप स्टेज पे बैठे हैं, मैं तो स्मृति ईरानी जी के बगल में भी बैठ के व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि व्हाट्सएप का जवाब अलग से दे. वो भी दे रही है, ऐसा नहीं है, वो भी फोन ही देख रही है. जो कुछ बोल रहा है वो भी नहीं सुनती है, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ. ठीक है, उस मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सुन रहा हूँ. तो you need to do ABC analysis of what things, and you have to do multiple tasks. कई लेडीज है, मैंने किताब में भी लिखा है, मेरी वाइफ फुल टाइम काम करती है 10 to 7 मेरे साथ. एक लेडी बोलती है भैया टाइम ही नहीं मिलता है, कब 3 बजता है, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है. मेरी वाइफ, मैंने आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं कि कोई काम अधूरा हो, घर की सफाई, खाना, एवरीथिंग इज डन. And just keeping servants never makes it done. You need to supervise, have a system. Right. एक लेडी सुबह जो वर्किंग है, जिनके सर्वेंट्स नहीं होता है, वो 4 बर्नर है कुकर के, वो चारों बर्नर ऑन कर कर एक में 2 सब्जी बना रही है, एक में रोटी सेक रही है.
एक मेरा सर्वेंट देख लो, वो एक एक करके काम करता है। वो लेडी बिकॉज शी इज प्रोफेशनल, वो मल्टीटास्किंग कर रही है और साथ में जो चॉपर बोर्ड है उसमें सब्जी भी काट रही है। तो वो आधा घंटे में काम करी, एक सर्वेंट उसको 2 घंटा लगाएगा। सो I think एक लेडी किचन में 10 बार जाती है, एक लेडी एक बार किचन जाती है, पूरा किचन का काम कंप्लीट करके आ जाती है। सो प्रोफेशनलिज्म, मल्टीटास्किंग, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क विल एक्सपैंड योर डे। और कोई अगर correct. कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत बन जाएगी। और मैं अगर कहता हूं मेरे पास फुर्सत नहीं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि मुझे वो काम करना नहीं है। मैं तो एकदम साफ बोलता हूँ, एक दिन हो सकता है फुर्सत नहीं हो, दूसरे दिन फुर्सत नहीं हो, कहीं ना कहीं फुर्सत मिलेगी। हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वी कैन कंप्लीट सो मच ऑफ व्हाट्सएप एक्सेट्रा वर्क। Right, right. Absolutely, absolutely. Uh, जैसे कि लेट्स कम टू योर कॉर्पोरेट लाइफ, बिजनेस लाइफ। जैसे कि टीटी लिमिटेड आपकी कंपनी है, प्रेजेंस इन 65 कंट्रीज, 60 years प्लस लेगेसी। तो वाज दिस लेगेसी बिजनेस इन द प्लेट, मतलब आपने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि दिस इज वेयर आई हैव टू हेड टू, और डिड लाइफ सरप्राइज यू अलोंग द वे? मतलब ये बिजनेस में ज्वाइन आई करने का वांटेड टू आपका आई वांटेड टू बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन ओके, मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा भी था। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मेरे जैसे लोग ही आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है देखने में लगे संजय जी बैठे हैं ऐसे, हमारे जैसे लोग ही बनते हैं। जब आप उनको क्लोजली जानते हो आपको पता है ऐसा कोई खास बात नहीं है। बट जब आप नहीं जानते आपको लगता है पता नहीं क्या, आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एवरीवन इज लाइक अ सोनी। बट मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ। तो obviously I got up this opportunity to head TT Group. It needed a leader and I wanted to do something on my own. So राइट, ये आया, it was my decision and I took the decision. I was already in ICICI Securities, JP Morgan JV. I was the top performer there, getting the highest bonus. और मैंने 4 साल में जो कॉर्पोरेट बॉम्बे में काम किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ लोग 10 साल में भी वो एक्सपोजर नहीं करते हैं। मैंने 500 करोड़ के मर्जर्स एक्विजिशन किए 1995 में। मैंने फर्स्ट टाइम को इंडियन बैंकर ने जीडीआर इशू किया, अकेला ऑफ द ताज ग्रुप। यहाँ तक भी मैंने लंदन जाके साइन भी मार दिया, सब कुछ किया। एसीसी कंपनी आपने सुनी है, उस टाइम में 200 करोड़ का मैंने प्रेजेंटेशन किया पूरे बोर्ड को, वाई दे शुड बिड फॉर इट। मैंने टेलीकॉम में 1997 में पूरे रात भर टाटा ग्रुप के साथ अकेला एडवाइसर बैठा रहा, सिर्फ 27 साल का लड़का। और हमने सब सर्कल के लिए 700-800 करोड़ के बिड किए विद कंसल्टेशन ऑफ मी। मतलब आई सैट होल नाइट विद देम 20। तो बहुत काम किया, मजा आया, बहुत काम किया, बड़ा मजा आया, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ा बड़ा काम किया। बट ठीक है, वो चॉइस था। आई वांटेड टू बी अ मैन, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड जिंदगी में जितना मुझे फ्लेवर्स लाइफ के मिले, बिकॉज आई वॉज अ मास्टर ऑफ माई ओन। इफ यू आर इन अ जॉब, आप कितने भी हो, आपको बहुत सारे बंदिश रहते हैं। मुझे याद है मैं सिंगापुर से हॉलीडे करके आया, रात को 1 बजे फ्लाइट की टिकट अटैच थी, बोला सुबह 6 बजे आपको दिल्ली मीटिंग के लिए जाना है। मैं दिवाली छुट्टी पर जाने वाला था, बॉस बोली इतना दिन का छुट्टी थोड़ी ना होता है। माई बॉस फॉर पीपल लाइक शिखा शर्मा, जो एक्सिस बैंक की एमडी रही हुई है। शिखा, हम तो फर्स्ट नेम से बोलते हैं आज भी। मेरे बुक में 30 साल बाद में आई कॉन्टेक्टेड हर, शी गेव मी अ फॉरवर्ड आल्सो, give a शिखा forward, बोलते थे। yes, yes, एंड yes. रेणुका रामनाथ जो मल्टीपल्स की है, इट्स फ्यू थाउजेंड करोड़। You also रेणुका, see L&T chairman also giving a thought. यस, एम नाइक के साथ आई बीन ऑन द सेम बोर्ड, बिकॉज मैं एनएसडीसी का बोर्ड मेंबर था। तो मैंने बहुत, मतलब लाइफ के कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कितने एक्सपीरियंसेस किए हैं, मतलब अगिनत है। और मेरे को मजा आता है अलग अलग चीज करने में। तो Yes. आई थिंक सो दैट फ्रीडम आई वुड नेवर हैव गॉट। पैसा कम है, पावर कम है, बट फेयर एनफ, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बट एज अ पर्सन आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। एंड अभी भी मेरे को बहुत कुछ करना है, तो जो करना है बड़ा करना है, छोटा नहीं करना Absolutely. आपके पीछे एक कुछ किताब का फोटो दिख रहा है, पिंच ऑफ सॉल्ट इन द रेसिपी कॉल्ड लाइफ। है। So is there any personal story behind writing this, firstly? Secondly, of all the 18 chapters of the book, which one reflects you the most? And thirdly,
can you also throw upon the last मैं अभी chapter? बोला मेरी मेमोरी खराब है, इतना सवाल पूछोगे भूल जाऊंगा. Okay. So, firstly, about thoughts on This writing the book, book. it was on my bucket list. I like doing diversified things. Writing a book was on my bucket list. जैसे सबके साथ होता है, टाइम मिलता नहीं है. तो मेरे बेटे ने और वाइफ ने कहा, पापा आप 50 के होने वाले हो, आपको कभी टाइम नहीं मिले, आपको किताब लिखना है तो लिख डालो. तो मैंने सारी किताब फ्लाइट में लिखी. आई ट्रैवल 15 days a month. सुबह मैं सोता हूँ क्योंकि ताकि दिन भर काम कर सकूं. शाम के फ्लाइट में लैपटॉप खोलता था ना, आई केप्ट टाइपिंग माय थॉट्स. मुझे किताब का नाम नहीं पता था, किताब क्या बनेगी नहीं पता था. फिर मैंने सोचा अब इसका नाम क्या दूं. एक एक चैप्टर लिखता गया, मतलब मेरे थॉट्स है जो भी है. सो जो मैं बोलता था वही एक एक चैप्टर बना, 18 चैप्टर बन गए. फिर मैं तो क्या है, बहुत फास्ट लिखता हूँ. आई नेवर एडिटेड माई बुक. मैंने लिख दिया. आई गेट वेरी बोर्ड रीडिंग द सेम थिंग. अभी कुछ बातें आप बोली, मैं भी भूल गया मेरी किताब में. और भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ मेरी किताब में. सो आई रोट दिस बुक. आई गॉट इट एडिटेड बाय 5-7 लोग. बच्चों ने भी एडिट किया, जो चेंज बोलते थे कर देते Your थे. daughter and son, I remember. Daughter, son, a friend who was a journalist, she edited. वो फ्रीलांस वाले से प्रोफेशनल एडिट कराया. मेरा एडिटर ने एडिट किया. जो चेंज बोलो अंग्रेजी का कर दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाम जो आया, देखिए हम कोई बड़े थॉट लीडर तो है नहीं, और बड़े थॉट लीडर यूट्यूब में बहुत है. तो ये मुझे नाम एक दिन खाने टेबल पर आया, जब किसी खाने में थोड़ी सी नमक कम था. तो मैंने रियलाइज किया एक चुटकी पर नमक सारे खाने का टेस्ट बिगाड़ सकती है. Absolutely. मतलब इट्स अमेजिंग थॉट. अगर आप सोचो, गलती से अगर चुटकी भर नमक. तो मैंने कहा सब लोग, आप लोग या जो बैठे हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं. ऑल आर 90, 95, 99% accomplished. There's something small which disconnects you from becoming great and greater. You know, वो चुटकी भर नमक ही है. इट्स कॉमन सेंस, कॉमन सॉल्ट. और नमक कहीं दिखता नहीं है, लेकिन नमक के बिना कुछ भी होता नहीं. So that's how I got this name, and I think so because I'm a छोटू थिंकर, छोटू राइटर. तो मैं छोटी बातें बोल सकता हूँ, बट मेरा ये ध्यान रहा, आई रोट दिस बुक फॉर मासेस. मैंने ज्ञानी लोग के लिए किताब नहीं लिखी, क्योंकि मैं सोचता हूँ ज्ञानी लोग तो बहस करने लगते हैं कोई बात बोलने से ही. दिस बुक वाज टू अंडरस्टैंड. एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, पुट योरसेल्व्स इन द अदर पर्सन्स शूज. मैंने सेइंग को थोड़ा किताब में चेंज किया है. Take off your shoes and then put yourselves in other person's shoes. Okay. If you don't take off your shoes, you'll never fit into anyone else's shoes. गारंटी देता हूं सर, कभी कोशिश कर लीजिए जूता पहन के और किसी के जूते में घुसने के लिए. Absolutely. और मेरा फेवरेट चैप्टर इज अनेकांतवाद. Okay. उस चीज ने, मैंने जब टीपीएफ ज्वाइन किया, कीड़ा कुछ अलग करूं, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, हाउ टू यूज जैन प्रिंसिपल्स इन बिजनेस. मतलब जैनिज्म का थोड़ा पढ़ा, बोला ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो मुझे पता है, सच तो बोलना ही चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए. तो मुझे अनेकांतवाद दिखा, तो उसको समझा. मेरे किताब में मैंने जैन धर्म के हिसाब से नहीं लिखा है, लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. Yeah. सोच, मतलब मैं, इतने मेरे लाइफ में परिवर्तन किया. मैं किसी को भी गलत समझने के बजाय सोचता हूँ वो मेरे से अलग है. और बहुत से सिचुएशन में हम लोग झगड़ा करने के बजाय वहां सोल्यूशन निकाल पाते हैं. तो पहले मैं सोचता हूँ वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं. Right. तो ये सोचना कि वो गलत सोच रहे हैं, मैं सोचा ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं. सोचा किसी में बुद्धि कम है, क्लास 8 तक की पढ़ा हुआ है, तो वो कारण है कि वो वैसा सोच रहे हैं. Absolutely. हर चीज का कारण है, कोई भी बिना कारण फालतू आदमी नहीं है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस and understand why is he thinking and start changing him from the roots. Like we say, I agree, you're right, but can you listen to me. हम किसी बच्चे को ये बोल दे कि मैं बोल रही हूं तुम सुनो, मम्मियां बोलती रहती है कोई नहीं सुनेगा. अरे बेटा तुम एकदम सही बोल रहा है, लेकिन क्या तुम ये पर्सपेक्टिव सोच सकता है. व्हाट इज मेंटरशिप. मेंटरशिप इज नॉट गिविंग हिम आइडियाज, इट इज शोइंग हिम द वे विद हिज आइडियाज. एंड दैट्स व्हाई, आपको याद है मनीष जी, मैंने कहा मेरे से स्पीच मत कराना. Absolutely.
स्पीच में मैं वो बोलूंगा जो मैं सोचता हूँ ऑडियंस को सुनना चाहिए, बोलना वो चाहिए जो ऑडियंस को मेरे से सुनना है। एब्सोल्युटली, कोई मतलब ही एब्सोल्युटली, नहीं है, मेरे सोचने से क्या होगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जय, ज्ञान देने वाले बाबा लोग की कोई कमी नहीं है सर। सो बिल्कुल। अनेकांतवादी अगर आप नहीं हो, हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और आप, मेरे गारंटी है, अगर आपने अनेकांत, वैसे तो मेरे ऑल 18 चैप्टर्स बहुत इजी इंप्लीमेंट करने के लिए, और मैं बोलता हूं आपके लाइफ में परिवर्तन जरूर आ सकता है। बट सबसे पहला परिवर्तन यह है, आप अनेकांतवादी हो, सबका रिस्पेक्ट करो। इवन कोई किसी का खून भी करता है तो जरूरी नहीं वो गलत है, वो खून हो सकता है सेल्फ डिफेंस में किया हो। तो प्लीज डोंट जज पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज हम दुखी होंगे, दुनिया को दुखी करेंगे। और मेरी तो एब्सोल्युटली, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अनेकानुवाद समझिए और इजी शब्दों में समझाइए। एब्सोल्युटली। और आपके जो फर्स्ट चैप्टर में है, उसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक एंड गो थ्रू इट। एक क्वेश्चन आप, मतलब नॉट अ क्वेश्चन, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे अभी अपने ऑडियंस में कुछ कॉर्पोरेट्स है, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी है और बनेंगे भी। तो व्हाट वैल्यूज शुड दे कैरी फॉरवर्ड, लाइक यू मेंशन अनेकांतवाद, उसके अलावा और क्या, एंड व्हाट शुड दे लेट गो, मतलब क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन योर लाइफ, वन और टू थॉट्स के, मतलब बिजनेस में फर्स्ट हो ऑफ या ऑल, लेट गो ऑफ फियर, लेट गो ऑफ द फियर ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल। 99% will not be successful in the first go. एब्सोल्युटली, एंड अपने तकदीर को मत कोसो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। होप इज नो स्ट्रेटेजी। बहुत लोग उम्मीद में जीते कल अच्छा होगा। होप अच्छी बात है, उम्मीद रखना, बट वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सक्सेस का। आपको जो करना है, यू गिव योर बेस्ट एंड देन लेट, जैसे कहते हैं गीता में भी बोला है, कर्म किए जाओ फल देगा भगवान। जो चीज करेक्ट। हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में यार सोचना बंद करो यार। मैं तो स्टेज में भी बोलता हूँ, सरकार क्या करेगी हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग उसको कोसना बंद करो और सरकार के बारे में सोचना बंद करो। जो 10-20 लीडर बैठे हैं उनको लड़ने दो सरकार के साथ। राइट। आप ये सोचो कि यार आप क्या अच्छा करोगे, आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और एक्चुअली मैं क्विकली बोल रहा हूं, अनेकांतवाद आउट ऑफ बॉक्स हटके करना होगा। इस दुनिया में किसी को कॉपी करके आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओ। राइट। यू हैव टू डिस्टरप्ट। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, डोंट रिस्क एवरीथिंग यू हैव इन लाइफ। अगर आपके पास 100 है तो 20-25% को रिस्क कीजिए, 100 को मत करो। कुछ लोग कर सकते हैं पर उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो चीज ही अलग है, उनको कुछ बोलने का मेरी औकात नहीं है। लेकिन एक जनरल आदमी को कुछ तो रिस्क करो भाई लाइफ में। क्या होगा, 100 नंबर का पेपर है, 20-25% में तो कुछ अलग करो। बी प्रोफेशनल, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। मेरे हर चैप्टर, कभी भी सीखना बंद नहीं होता है। हर बार कुछ ना कुछ नया हम किसी से सीखते हैं। बी, जिंदगी को रेनबो करो, मल्टी डायमेंशनल बनो। इफ यू हैव टू रन अ बिजनेस, यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल। राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस। अगर आप किसी कंपनी में भी है, अगर आपको सक्सेस होना है, उसमें टॉप में जाना है, आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। CEOs आर नॉट स्पेशलिस्ट, CEOs are people who have a multifaceted look. So एक साइंटिस्ट को भी मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, एक इंजीनियर को भी मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। राइट। एक बात याद रखना, मुझे बहुत लोग पूछते हैं सर मैं फाइनेंस लूं या मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग इज नो चॉइस। जब से हम जन्म लिए हैं दूध के लिए भी हमको रो के मार्केटिंग करना पड़ता है। पैदा है तब आपको से। शादी करनी है तो भी आपको मार्केटिंग करनी है। आपको कुछ भी जिंदगी में करना है, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ। सो प्लीज, मार्केटिंग इज नो चॉइस, वी ऑल हैव टू मार्केट आवरसेल्व्स। इवन मैंने मनीष को मार्केट किया लास्ट संडे को कि मैं कितना अच्छा बोलता हूं, तभी उन्होंने मुझे बुलाया। तो everywhere it's marketing, networking, building relationships, multitasking, being professional. Everything I've said in my book, don't read my book. ये 18 पॉइंट्स आप सब समझते हैं, पॉइंट्स को 18 पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट कीजिए।
आप कुछ भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप social worker हो, anything you do in life, all the 18 points are valid. It's not a book just for business, not a book for corporate, even for a housewife, student, सब पर all Athara principles apply. Thank you, thank you, thank you so much for all your thoughts. अब मैं क्विकली आपके साथ एक रैपिड फायर रखूंगा जिसमें आपको क्विकली आंसर्स देने हैं, शॉर्ट में आंसर्स देने हैं. It could be a one word, it could be one sentence. So we'll have this rapid fire and then we'll take questions from the audience. So let's begin, Sanjay ji. बोलिए बोलिए. Okay. So first question, a book that changed your perspective. Who moved my cheese? Just 65 pages. Your go-to newspaper or magazine? I don't read either. I don't Oh. read only. I get knowledge from the environment in which I live. Reading books or YouTube Gyan? What's your pick? I don't read any books. YouTube कम ज्ञान है. मैं तो जहाँ घूमता है, I'm learning every moment, every second. Okay. Outdoor sports or a game of chess? I used to love chess. I also love outdoor games, though I'm not good in outdoor games. One habit you swear by? Not having a habit. One mistake or decision that changed your life? Actually, multiple. There's no one mistake or one decision. No, where you had a major diversion in your life. मतलब this was the point जहाँ पे I think so. Deciding to go to IIM Ahmedabad. And just to add, मैंने decide किया IIM में नहीं जाना है, अहमदाबाद ही जाना है. मेरा सबसे लास्ट एडमिशन लेटर IIM अहमदाबाद का है. आप सोचिए, एक बंदा IIM कैलकाटा, IIM बैंगलोर, एक्सएलआरआई, बजाज का लेटर हाथ में, फिर भी खुश नहीं था. your go-to stress buster? Distraction, friends, and deep breathing. Late night Maggie या early morning chai? Love both of them. I'm not a person of routine. दोस्त अगर रात को जगेंगे तो मैगी भी खा लेंगे और सुबह बोलेंगे तो चाय भी पी. A quote or dialogue you live by? Really none. आजकल तो मेरा वही है, pinch of salt. Okay. If a movie had to be made on you, what would it be titled and who would be the actor? Of course, myself, and the title would be A Pinch of Salt in the Recipe Called Life. And finally, if you had a magic mic that could broadcast one message to every student and dreamer in the world, what would you say? Think out of the box. Thank you so much, Sanjay ji. And what an incredible conversation this has been. It's been an absolute pleasure and privilege for me to host this session with such a remarkable personality. There's so much I am personally taking back, life lessons, clarity, and course correction, which I need now very badly. So before we wrap up, Sanjay ji, and we go to the questions from the audience, any closing thoughts or message you'd like to share with the audience today about this fireside chat we've had? I think so. The questions will give my thoughts. Great, 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 great. Okay. So now over to the मैं audience. audience को request करूंगा, जो पूछना है बिंदास पूछे. I can talk about anything. Don't worry. Okay, so if we can have the audience, how do we do it? We can, if you can raise your question. Okay, raise your hands. So we'll have the questions. So first question is from Dinesh Ji Doka, and I am allowing you to unmute. Yes. Jai Jinendra Sanjay ji. Yes, Dinesh Ji. Am I Please go. audible? You are am I audible? and visible. Yeah. Okay, संजय जी, आपने बहुत सी जगह बताया है कि बी प्रोफेशनल. जैसे किचन में लेडी भी काम करती है, 4 चूल्हा उसका जलता है, वह सब्जी भी काट रही है. कैन यू एक्सप्लेन मी, आपके टर्म्स में बी प्रोफेशनल क्या होता है? संजय जी, you're muted. Professional degree is not a professional. It's a way of Agree. working, a way of thinking. Are you systematic? Do you have the right mindset, the right attitude? And it's a smart work plus hard work. सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी आप प्रोफेशनल नहीं होंगे, सिर्फ हार्ड वर्क से भी नहीं होंगे. If you combine both, then only you're a professional.
and you can be professional in a social program, in a TPF program, in conducting such a show anywhere in life. So please don't think आपने पढ़ाई कर ली तो you're a professional. Surely not. थैंक यू Thank you. धर्मेंद्र, आप अगर अपना क्वेश्चन पूछ सके. थैंक यू. जय जिनेंद्र. संजय जी, काफी इंस्पायरिंग सेशन था आपका. मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने बोला लेट गो ऑफ फियर, बट समटाइम्स क्या होता है कि पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो फियर आ ही जाता है एक्चुअली. तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? उसके ऊपर कोई टिप? फेयर तो आएगा, लेट गो करने से भी आएगा. ये कोई हम लोग भगवान तो है नहीं, तो फेयर आएगा, आने दीजिए. बट दैट फेयर शुड नॉट कम ओवर यू. डर अच्छा है, क्योंकि डर आपको कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता है. एंड मैं जब भी फेयर में रहता हूं या स्ट्रेस में रहता हूं, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड गो आउट विद फ्रेंड्स, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए. मैं संडे को कभी रेस्ट नहीं करता, कभी रेस्ट नहीं करता. मुझे कभी भी आप बोल दो मिलना है, कॉफी पीना है, चाय पीना है, मैं तैयार हूं. बिकॉज मैं बोला रेस्ट करूंगा तो और स्ट्रेस बढ़ता है मेरा. 8 घंटे से ज्यादा आपने क्या रेस्ट करेंगे यार, शरीर को चाहिए नहीं. सो लेट द फियर स्टे. इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट डोंट अलाउ इट टू कम ओवर यू. आप ये सोचिए बूढ़ा से बूढ़ा क्या हो सकता है. सपोज जैसे आपने एक स्कूल प्रोजेक्ट ही किया, आपने बिजनेस धंधा में कुछ चेंज किया, आपके 100 कस्टमर है, 20% कस्टमर चले जाएंगे, तो आप तैयार रहिए कि 20% लोग जाएंगे. सो फिर खत्म है. जब आपने सोच लिया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो you stop feeling bad about it. When do you feel bad? When you are stuck with something and उसको फिर the loss becomes a stress for you. तो हमेशा कुछ कीजिए, डर रखिए कि मैं हार सकता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन हारूंगा तो क्या जाएगा. ऐसा कोई फेयर मत लूज कीजिए कि कहीं सीधा पहाड़ के ऊपर से गिर जाओ नीचे. कोई बोले ये रस्सी है, संजय जी ने कहा था फेयर जाने दो भाई, वो बंदा चल रहा है, मैं भी चल पड़ू और गिर जाओ. ऐसा फियर लॉस कोई काम का नहीं है. रिस्क, बट रिस्क विद इन योर केपेबिलिटी ऑफ टेकिंग दैट रिस्क. थैंक यू. कभी आपके साथ चाय पियेंगे. जरूर, एनी टाइम सर. बस पैसे आपको देने पड़ेंगे, बाकी मैं ऑलवेज फ्री. थैंक यू. श्योर. अनम्यूट करते रहिए जल्दी जल्दी. Next, can I ask Muskan to ask her question? Yes, Muskan. हेलो, जय जिनेंद्र एवरीवन. जय जिनेंद्र सर. सर, मैंने अभी रिसेंटली अपना MBA कंप्लीट करा है फ्रॉम अ Tier 2 कॉलेज, और मैं जॉब सर्च कर रही हूँ. एंड आई फील इट कि मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस जो मेरे पास था, एंड स्टिल आई हैव नॉट बीन प्लेस. तो थोड़ा सा फियर दैट अभी लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस हुआ, एंड दैट एंजाइटी कि एम आई नॉट द राइट फिट, और इज इट द टाइम ऑफ रिसेशन दैट आई एम इनटू. तो उस चीज को कैसे टैकल करें, क्योंकि एक प्रेशर बन जाता है कि ओके इट्स बिन ओवर लाइक 15 days एंड आई एम सर्चिंग एंड आई एम नॉट आई टेल गेटिंग यू कॉल. मुस्कान, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डॉटर का नाम भी मुस्कान है, उसका आज बर्थडे है. She's just finished her MBA, but she's finished it from the best place in the world. So, but पहले बार it's for everyone. Tier 2 जगह से MBA करना नहीं चाहिए. आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, it's for other people. ऐसा कोई नहीं लगा हुआ है कि हमको MBA भी करना है. तो that's one thing. Secondly, getting a job from a Tier 2 MBA is very difficult. I have no bones about it. But हमारे पास एक अच्छा चीज है, हम जैन कम्युनिटी में जन्म लिए हैं. आप जीतो जॉब्स है, जीतो जॉब्स को अप्रोच कीजिए. नहीं होता है तो आप मुझे भेजिए. आप कौन से जगह से हैं? सर, मैं जयपुर से हूँ, बट रीलोकेशन कोई इशू नहीं है मेरे लिए. लाइक नहीं, ऐसा है, जीतो जॉब्स को आप जयपुर में अप्रोच कीजिए. सर, मैं हूँ लाइक जीतो जॉब्स में भी हूँ मैं. तो नहीं, अगर वो वहाँ नहीं जॉब कर रहे हैं, यू शेयर योर बायोडेटा विद मी. मैं जीतो जॉब्स के चेयरमैन को भेजूंगा, वो कहीं ना कहीं तो आपको प्लेस करा देंगे. देखिए, आपको अपनी उम्मीदों को हो सकता है ट्रिम डाउन करना पड़े. कलकत्ता में हमारे एक हैं दिनेश जी जैन, दिगंबर है. उनका कहना है कोई भी जैन
को नौकरी नहीं मिले तो मैं संजय जी दिलाऊंगा। तो Thank ऐसे you so लोग much, बैठे हैं, sir. वी हैव दिस एडवांटेज। और ये टीपीएफ के लिए लेसन है। हमारा काम है, वी शुड क्रिएट अ सेल कि क्वालिफाइड लोग को हो सकता है थोड़ा नीचे का जॉब मिले, बट वी शुड गिव एवरीवन अ बेंचमार्क, अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। मनीष जी प्लीज डिस्कस दिस, हाउ टू चैनलाइज। और मैं वापस कहता हूं, मैंने डीपीएफ को भी कहा है, हमको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। लेट्स यूज जीतो जॉब्स, चैनलाइज द पीपल देयर, बिल्ड रिलेशन विद देम और बोलो हमको जॉब दिलो, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। Absolutely, और आप absolutely. मुझे भेजोगे, मैं सलोनी जो जीतो जॉब्स, जीतो जयपुर की चेयरपर्सन है, मैं सलोनी को भी भेज दूंगा। और बहुत सारे, मैं जीतो में बहुत एक्टिव हूँ, आई वॉज द नेशनल वर्किंग कमेटी, भेज Okay. दूंगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है आपको, कहीं ना कहीं, प्रॉमिस नहीं है बट उम्मीद है कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। बट डोंट गेट इनटू मीडियोकर प्लेसेस, Okay. डोंट, इट मेक्स नो सेंस, बेटर टू डू समथिंग एल्स। Okay. Thank you, Thank you so Muskan. much, sir. And we will take last 4 questions. So, firstly, Shama, can you please ask your question? Jai Jinendra, Manish uncle and Sanjay uncle, thank you. It was a very nice session. So the question I want to ask is, आपने जैसे rabbit and hare की story बताई कि rabbit and turtle की कि hare is always fast and we should, but slow and steady would win the race. पर हमारी जो Gen Z generation है उसमें हर चीज बहुत urgency के साथ हम perceive करते हैं और हमें लगता है कि अगर आज success नहीं मिली और आज बड़ा काम नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा. So what steps can we take to balance the peace of mind and urgency practically? देखिए, if you think you're a hare, if you have that quality of a hare, then you run in that direction, कोई problem नहीं है. But Gen Z में सब में तो वो quality है नहीं. Everyone is not a hare or a rabbit. There are many turtles or midway. Either you're going to learn the bad way by failing. I think so. कई बार choice नहीं रहता life में, Shama. You have to lose it out because you're not going to trust what I say or your papa says or anyone else says. But so you'll have to learn the bad way, wrong way. But otherwise, you try your best, run like a hare. But don't get discouraged if you don't achieve, don't reach the finishing line. मैं ये नहीं बोल रहा कछुआ के जैसे चलो, बिल्कुल नहीं, मैं खुद भी नहीं चलता. आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पेशेंट. लेकिन अगर नहीं होता तो रुको मत यार. अगर दाया नहीं जा सकते, गूगल को रीलोकेट करो. लेफ्ट में ट्रैफिक जाम हो गया तो राइट से निकलेंगे, राइट से नहीं तो और कहीं से निकलेंगे. जैसे गूगल में मल्टीपल रास्ता है एक ही जगह जाने का, हमारे लाइफ में भी पहुंचने के मल्टीपल रास्ता है. कीप प्लान बी, कीप प्लान सी, पर एक काम मत करना, रुकना मत. कभी भी जिंदगी में रुकना मत, ट्रेडमिल से गिर जाओ. Thank you so much. Thank you. And Kalpesh? जय जिनेंद्र मनीष जी, जय जिनेंद्र संजय जी, जय जिनेंद्र एवरीवन. सो संजय जी, हम पहले अहमदाबाद में आपके सेशन के टाइम पे मिले थे. आई हैव 3 क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस, यू कैन गिव ब्रीफ आंसर्स. नंबर 1, यू सेड कि मैं खुद इतना डिसिप्लिन में नहीं फॉलो करता हूँ. आई टेक माय फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने भी जाते हैं आप अगर रात को भी. So, but whenever I see, if you read, let's say, 7 Habits or any other book, they always say कि multimillionaire होते या successful people always follow discipline a lot. So, how important it is for me as an entrepreneur? I'm also a finance professional working for myself, building my clientele. How important it is for myself, even for my family, not just professionally. Number 2, because you are handling textile industry all by yourself as a family business, and I think you would understand the best. What is that area which you think as a finance professional, any CA or any other finance professional should look into, that you guys are facing a problem with? Like it's the biggest problem statement you are not able to solve or you are not able to address. Kalpesh ji, I'll pause you here. सबसे पहले भाई, डिसिप्लिन मैंने एक शुरू में कहा, सुनो और समझो सबकी, करो अपनी. स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. आप 7 हैबिट्स पढ़िए, डेल कार्नेगी पढ़िए, जिसको पढ़ना पढ़िए, सबसे सीखिए. जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग गार्डन्स के बेस्ट फूल लीजिए, लेकिन उसको सजाना आपको अपने तरीके से पड़ेगा. You cannot blindly follow anyone in this world. If you ask me if I have any one ideal, I don't have. I have many ideas का अच्छा चीज जोड़ जाड़ के अपना जुगाड़ करो. पहली बात. दूसरी बात है, आप एंटरप्रेन्योर हो
24 घंटा में आपको 12 घंटा काम करना है, सपोज आप डिसाइड कर कौन से 12 घंटा काम करना है। कोई 9 से 9 करेगा, कोई 7 से 5 करेगा, फिर 8 से 11 करेगा, बीच में जिम जाके, दैट्स योर चॉइस। काम तो इतना करना ही पड़ेगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योर है, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू, so you cannot blame anyone else. If you're not disciplined to do your output, you are only to blame. तो आपको when you have your back against the wall, then automatically discipline will come, because you need to succeed. And success, today's success is not tomorrow's success. Tomorrow's success का महीना change हो जाएगा. So discipline का मतलब नहीं आप काम ही मत करो, आप अपने हिसाब से करो। अपने देखिए, आपको रास्ता अपना चुनना पड़ेगा, हर आदमी को अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं भी किसी को रास्ता बता नहीं सकता हूँ, मैं उसको ऑप्शंस दे सकता हूँ। और दूसरा, टेक्सटाइल में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल में हमको क्या चाहिए, आप हमको बताओ हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। मेरे को अच्छा कस्टमर ढूंढ दो, कस्टमर को खुश कैसे करूं, और बिना चोरी करे पैसा प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊं। अगर आप मेरा कॉस्टिंग बेटर कर सकते हो तो कीजिए। एंड देखिए, ऐसा कोई अल्टीमेट आंसर नहीं है सीधा सा, सर आप बता दो मैं कहाँ जाऊं और 1 करोड़ रुपए लेके आ जाऊं। भाई मैं तो नहीं बता सकता, और जो बोलता है बता सकता है वो भी झूठ बोल रहा है। Right, thank you, Kalpesh. Next question, Vanshika is from. I can see 2 hands. Piyush. Yes, Siddharth LP. Please go ahead. Thank you. Very nice session, Sanjay ji. और वन लाइक यू हैव सेड दैट, लाइक आपने कहा कि टायर 2 सिटी से एमबीए नहीं करना चाहिए, और लोगों को जॉब्स के प्रति प्रमोशन की बात कही। टायर 2 इंस्टीट्यूट से नहीं, टायर 2 इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए। हाँ, टायर टू इंस्टीट्यूट से नहीं, लेकिन साथ में आपने एक और बात बोली थी आपके लेक्चर में कि पहले जमाने के जो बिजनेसमैन होते थे तो एक जगह की अगर फ्रेंचाइजी लेते थे तो अपने जनरेशंस निकाल देते थे। अब 7 से 8 साल भी वहां पर काम नहीं कर सकते। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस जो टायर 2 या 3 सिटीज में चलते हैं, वो लोग मार्केटिंग करते हैं, अपना पैसा खुद लगाते हैं और जॉब्स के प्रति इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसे हम लोग ये क्यों प्रमोट करते हैं कि तुम जॉब करो, जबकि अगर कोई भी आजकल जैसे गूगल क्लाउड है, अमेजन क्लाउड है, सिस्को क्लाउड है, मुझे नहीं कहीं पता पर भी कौन मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है। में सिद्धार्थ जी, who's promoting कि आप जॉब करो भाई? नहीं। मुझे नहीं। जैसे अभी मैडम ने आपसे पूछा था मैं जॉब कहाँ करूँ, मैंने कहा जी तो भाई प्रमोट कर दो। लेकिन अपन ये क्यों नहीं कहते हाँ भैया किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, कोई की मार्केटिंग करो और नहीं, उसके संग में लगे रहो। अभी क्या है, I अभी जो want to आदत बन रही है बंदों की, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अभी जो आदत बन रही है बंदों की, वो 6 महीने कहीं काम करते हैं, 1 साल कहीं काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इंटरप्रेन्योर भी परेशान होता है, वो भी परेशान होता है, इंटरप्रेन्योर को भी अच्छा बंदा नहीं मिलता, और मतलब सब जगह परेशानी का कारण बन रहा है बहुत रिलक्टेंस से। मतलब लोग बाग जो आ रहे जा रहे, इटरेशन हो रहा है, मतलब एक सोसाइटी एक पैसे की तरफ भाग रही है, मतलब पैसा ही पैसा उसे सिद्धार्थ जी, चाहिए। मैं समझ पहले गया एक आपका। शांति भी रहती थी। अगर Siddharth ji, you will have to hear also. हाँ सिद्धार्थ जी सुनिए, सबसे पहले भी पैसे हाँ के बिना तो कुछ होता नहीं हाँ है। पैसा के पीछे भाग रहा है, पैसे नहीं के बिना आपके पास ये लैपटॉप भी नहीं होता, फोन भी नहीं होता जिससे आप मेरी बात सुनते हैं। हर चीज जिंदगी में जरूरी है, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग जुड़ते तो जुड़ते हैं। अब हर एक आदमी का नजरिया अलग है। किसी को जॉब की शांति चाहिए, किसी को बिजनेस की अशांति चाहिए, किसी को आराम से चाहिए, जो आ रहा है 2 रोटी टाइम का खाना मिल रहा है। एवरीवन हैज हिज पर्सनल चॉइस एंड वी हैव नो राइट, and I'm repeating, no right to prescribe how another person should live his life. Only thing he should be happy and satisfied. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भगवान से लास्ट 25 साल में सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं। 25 साल हो गए होंगे मुझे, कि मुझे सुख और शांति दे। सॉरी संजय जी, आपका म्यूट हो गया। इट्स ओके। मुझे तकलीफों से लड़ने की ताकत दे। तो लेट एवरीवन डिसाइड, आपको क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब लेना, आप डिसाइड करो। मुस्कान को क्या करना है, लेट हर टेक अ कॉल। शी हैज एनफ फीडबैक्स एंड
what you say, knowledge in the environment to take a call. सारे आदमी जॉब करेंगे तो भी नहीं चलेगा, सारे आदमी जॉब देंगे तो भी नहीं चलेगा. दुनिया प्रकृति से चलती है तो वो प्रकृति से चलेगी. तो आप दुनिया के बारे में चिंतित मत होइए. आपको क्या करना है वो सोचिए और उसको जम के कीजिए. आपको एंटरप्रेन्योर बनना, आप बनिए. और कोई ऐसा आदमी नहीं कह रहा है कि सारे लोग जॉब करो या सारे लोग जॉब नहीं करो. अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं उसकी परिस्थिति देख के बोलते हैं. अभी कोई बोलेगा उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आप 20% टान सकते हो, आप उसको 100% टानोगे और रबर ही टूट जाएगा. तो you have to decide a person's capability and then tell him to do what he has to do and never bother कि इसका ये मुझे इसको हराने के लिए लाल लाइन के मुझे और बड़ा लाल लाइन करना है. You can draw blue line and be bigger than him. तो हम लोग ये क्या कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि हमको लाल लाइन है, हमको और बड़ा लाल लाइन बनाना है या उसकी लाइन छोटी करनी है. मैं बोलता छोड़ो ना उसकी लाल लाइन को भाई, आप अपनी ब्लू लाइन बनाइए. आप अलग, आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आपका किसी से कंपैरिजन ही नहीं. Right. Thank you. And we have the last question for the day, which is from Piyush Dunia. He's a futurite. So Piyush, please go ahead with your question. Yes, you can unmute yourself. Hello. Yeah, Piyush. Sanjay sir, I want to just ask what are the key skills one should add as an entrepreneur and as a student so it can help in his finance field? Like as you said, you have worked for 500 crore mergers and acquisition and for telecom industries. What are the key skills to be added in early stage? Communication skills, your language delivery skills should be very good. और मेरे किताब में एक चैप्टर भी है, communication is not what you said, it is what the other person understands. So you should understand everyone. को आप सेम भाषा में बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा. एक टिस्को के एमडी को बोलोगे और एक टिस्को के मैनेजर को बोलोगे, आपको अलग अलग भाषा में. सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी वेरी गुड. कम्युनिकेशन के साथ मार्केटिंग आता है. मार्केटिंग, यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ. आप जॉब लेने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, कोई लड़की भी आपको पसंद नहीं करेगी if you're not able to market yourself, because everyone doesn't know what's inside you unless you tell someone. So you need to market yourself. You need to have good communication skills. जो आप डोमेन में हो, आप सीए बन रहे हो, जो भी बन रहे हो, वो पास करने के लिए तो आपको स्किल्स चाहिए. आपको फाइनेंस वाला बनना है तो आपको फाइनेंस स्किल्स चाहिए. फाइनेंस स्किल्स आर नॉट ओनली अकाउंट्स. It is about, making scenarios, valuations, Excel skills, making models, as they say. मुझे याद है मेरे टाइम आईसीआईसीआई जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम वैल्यूएशन का कंसेप्ट ही नहीं था. अब आप लोग सब जानते हो DCF. The first valuation model was made by Excel by me. NPV निकालो, DCF निकालो. मेरे बॉस ने कहा, वो हम लोग टिस्को को जा रहे थे, इशाद हुसैन थे MD. एक बोले संजय 400 करोड़ में उसको मजा नहीं आएगा, ये वैल्यूएशन को 500 करोड़ खोलो. बोला मैम 2 मिनट लगेगा, बैठो. मैंने एक्सेल में 2 चीज चेंज की, उसका वैल्यूएशन 500 करोड़ हो गया. वो अलग बात है, वो प्लांट कभी बिका नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट वी नीड टू नो फाइनेंशियल मॉडलिंग. we need to know scenario building. Today is a thing of coming up with new options, innovative things, and always have that thing of thinking out of the box. वो तो आपको मार्केटिंग है, तो आपको हर चीज में चाहिए, नहीं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं. चाहे सीए में फर्स्ट भी आ जाओ, जॉब अच्छा मिल जाएगा, लेकिन सक्सेस नहीं होगे बियॉन्ड अ पॉइंट. सक्सेस का मतलब है स्टैंड आउट करना है. ये नहीं कि 5 लाख 10 लाख की सैलरी मिलेगी, वो तो ठीक है अपने ढंग से. I think we are at the end, but there's one Mr. Mukesh ji. He's been raising his hand for a long time. So this last question, and then we wrap up the session because we want to close it on time. Yes, Mukesh ji, you can unmute yourself. Hi, thanks, Manish. Hello, Sanjay ji, Jai Jinendra. Yes. So basically, I had a question. You spoke about being out of box and being disruptive, right? So this also means there's a lot of change that needs to happen within the community and back within the families, of various queries, that are being also raised today. So what do you think, जो family level पे या community level पे करना चाहिए,
so that a person can really think out of box, can become disruptive, and भले वो corporate select करे या business, but he can be successful. So what is that change that you feel is very, very essential based on your experience? Sorry, I will say don't think of changing anything in the family or community. That's not your job. The job is to change within you. Start thinking out of the box. Suppose आपको आज संडे को बाहर ही जाना है, क्या आप कुछ अलग तरीके से दोस्तों को ट्रीट कर सकते हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. विद इन द फैमिली ऑल्सो हम लोग नॉर्मली क्या, वी ऑलवेज इन अ ब्लेम गेम. मेरे ऑफिस में मेरा एक सिंपल मंत्र है, एक्सक्यूजेस आर नॉट वेलकम, प्रॉब्लम्स आर वेलकम. अगर आप देखेंगे आपके मैक्सिमम स्टाफ कारण बताते हैं काम नहीं होने का. मैंने कहा मुझे कारण नहीं सुनना है. जब कारण पैदा हुआ था तब आप मेरे पास आते हैं, हम दोनों मिलके उसको सॉल्व करते हैं. समझ रहे? मुझे बहानों से कुछ नहीं होता है. आप, यू आर नॉट विंडिकेटेड बाय गिविंग मी अ रीजन व्हाई दिस डजंट हैपन. इट्स नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप फैमिली आपको रोक रही है, कम्युनिटी रोक रहा है, आप छोड़ दीजिए सर. फैमिली अपनी जगह अपने हिसाब से जिएगी. आप ठेकेदार नहीं हो पूरा फैमिली चेंज करने का. आप फैमिली से बात कर सकते हो, फैमिली को समझा सकते हो, बट आप फैमिली को रिस्क पर नहीं ला सकते हो. आप ये नहीं कह सकते मेरी फैमिली ने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया. नहीं देंगे, उनको नहीं समझ में आएगा सर. आप में या तो समझाने का स्किल होना चाहिए, उनको कन्विंस करने का स्किल होना चाहिए. अदरवाइज डोंट ब्लेम देम दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू. उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है किसी को अंडरस्टैंड करने का. वी नीड टू शो देम दैट वी आर सक्सेसफुल बाय चेंजिंग. छोटी छोटी चीजों में आप दिखाओ जाकर अपने फादर को, मैंने ये 10,000 रुपये बचाए, मैंने एक स्टाफ की तनख्वाह बचाई. यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. कल वो नहीं आएंगे, वो आपके पास आके बोलेंगे भाई मुकेश जी बताओ भाई और क्या चेंज करे धंधे में, तुम तो गजब के हो यार. And this I'm telling to each and one who's still listening to me. Don't blame anyone. It doesn't help any of us. Great. Thank you so much, Sanjay ji. And it was a brilliant session, I must say. Thank you so much for taking your time out. Now I would quickly ask everyone to just switch on your camera and we'll just take a pic and then we have the vote of thanks and we wrap up the session. Yes, so if you can just switch on your camera, we just take one pic and then we have Vanshika with the vote of thanks. And a brilliant session it was. So 1, 2, 3, here we go. This is the first page. And Sanjay ji, I must tell you, आपका जो session रहा है, it was really very प्रभावशाली because we normally notice that during the first 10-15 minutes, you have a lot of people being part of the session and sitting through the session, but almost 80% of the people still being part of the session really shows the kind of session we had today. Thank you so much for that. Now that's the respect of all the audience and I really appreciate. Yeah, thank you so much. And if anybody has any final thoughts to give, anybody I wants judge a session by the number of questions people ask. Rather than the verbal तारीफ which I get, which अनिवार्य है. But एक बात बोलूंगा जाते जाते, never fear to ask questions. It's better to be stupid for a moment because the people around you may think यार क्या बकवास है, इसको इतना भी नहीं पता है. Rather than being stupid, ignorant for life. So many of us at the fear of being stupid for a moment are ignorant for life. सवाल पूछिए. ये जो लोग आपके आमने सामने, इनसे कुछ नहीं होने वाला है आपकी जिंदगी में. What matters if you're able to take something forward, that's what really will change you. Sir, एक क्वेश्चन पूछना है. Sorry? एक small question. Question we'll take it later now. I think question का time हो गया है. So let's not take any more questions. So we wrap up the session. If anybody has quick few words to say, I can see Sushil ji in the meeting. I can see Alok ji. I can see Dr. Jaya ji in the meeting, the founder member of TPF. If you have any final thoughts, please give it and then we wrap it up.
Manishi, can I? Yeah, please go ahead. Yes, Rakshita ji. Yeah. Sanjay sir, thank you so much. Such an insightful session. I would say that each and every word, each and every line, and each and every sentence that you have spoken is really impactful. Thank you so much. I'm glad, Manish ji, you have taken this session, and I have no words beyond this. Thank you so much. अगर किसी का कोई सवाल हो आप चैट ग्रुप में डाल देना, मैं वॉइस Yes. से आंसर कर दूंगा. नहीं, we'll open it in our group also, संजय जी, तो तब वो डाल. मनीष भैया, मैं कुछ बोल सकता हूँ? प्लीज बोलिए. संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समसामयिक विषय पर इतना सारगर्भित एक विवेचना की है. थैंक यू सो मच. आपका जो प्रिंसिपल है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर उसको 25 घंटे आप बना सकते हो अगर हर दिन आप 1 घंटा पहले उठ जाओ. अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, उसकी जगह 6 बजे उठोगे, 1 घंटा आप 24 दिन में एक नया दिन क्रिएट कर लोगे. ऐसे ही, और भगवान महावीर का जो प्रिंसिपल है कि मैं किसी को मोक्ष दे नहीं सकता, मैं वो वाला पथ बता सकता हूं जहां मोक्ष मिलता है, वैसा ही आपने अपने इस जीवन, श्रावक जीवन के अंदर कैसे हम अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ वाला उसको बताया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम हरा. थैंक यू आलोक जी. सो आई थिंक और किसी को कुछ नहीं कहना है, तो थैंक यू सो मच. एंड Vanshika, we can go for the vote of thanks. Thank you, Manish sir. Indeed, it was a very, very powerful session. Thank you, Sanjay sir, for your inspiring insights. Your words truly made us pause, reflect, and realign. In fact, I have taken my notes, and I look forward to applying these in my own journey. And to all the wonderful audience, thank you for your presence and enthusiasm, of course. Before we close, don't miss Sanjay sir's book, A Pinch of Salt in the Recipe Called Life. Today was just a glimpse of it. The book has much and a lot more wisdom in it. So see you all next time. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. And with this, we end our session for the day. It was great. Thank you, Sanjay ji, for. थैंक यू मनीष जी फॉर हैविंग मी हियर. अपनों के बीच में बोलना का एक अलग ही आनंद आता है. एंड टीपीएस इज माय फैमिली, मेरा परिवार है. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. Thank you, everyone. I am ending the session.